Good evening, students. Today we are going to start ladder operators and its relation with angular momentum. Now, first of all, what do you mean by ladder operators? Ladder operators are basically those operators which are imposed on another operator for raising or lowering their value, or we can say they are using as a raising or lowering operator. They can increase or decrease the eigenvalue of another operator. Raising operators are known as creation operators, and those latter operators which lower the value are known as annihilation operators. The well-known application of ladder operator is the quantum mechanical treatment of angular momentum. And for a general angular momentum vector which is denoted by L, in along x-axis, y-axis and z-axis, we have two types of ladder operator which are denoted by L positive and L negative. Here L positive shows following relationship, that is equal to L plus, or L positive is equal to Lx minus ILy, and then L negative is equal to Lx minus ILy. Here I, this is an imaginary unit. Now, first of all, we are going to start commutation relation of Lz with L plus. Lz with L plus is equal to Lz comma Lx plus ILy, as we know that L plus is equal to Lx plus ILy, so that we have written it here. Now, on applying commutation property, that is A, B plus C. Here Lz is A and this is B and this is C. This, according to this commutation property, A, B plus C is equal to AB plus AC, so that we obtain Lz Lx plus I Lz Ly. In second term, we always take I common. Now, we have studied earlier, I think BSc में आप सबने पढ़ा होगा ये basic relationship Lx Ly, that is equal to I H cross Lz. Then Ly Lz is equal to I H cross Lx, and Lz Lx is equal to I H cross Ly. Now, this relationship is for clockwise. Like we know that whenever we move from Lx to Ly, then Lz, yani in sequence x, y and then z, this is known as clockwise pattern, which represent the value of L plus. That means raising operator. Now, whenever we move in opposite direction from this x to z, then z to y, it will represent the negative value. That means it will represented by L negative, and in that case, we will obtain here negative sign whenever we put Ly comma Lx, we got the value minus H cross Lz. ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी वन बाय वन आप करोगे जब समझ आ जाएगा. Now, for the beginning value, we have obtained Lz, Lx and so on, which is written here. Now, on solving this equation, here putting the value of these operators, we got I H cross Ly, then plus I, putting the value of another operators, we obtain minus I H cross Lx. Now, I H cross Ly plus, here we get, here is minus I multiplied by I, we got I square. I square is always equal to minus 1, and here already minus, so that this minus 1 is multiplied by this minus sign, and we got here plus 1, so that we have written H cross Lx, and we have obtained H cross as a common, and ILy plus Lx, that is equal to H cross, and this ILy plus Ls is the value of L plus, raising operator. So we get the result for commutation relation of Lz with L plus. Now we go for another type, that is commutation relation of Lz with L negative. Now, it is almost similar. Lz, L negative we got by putting the value of, here it is Lz and here we have put the value of L negative, that is Lx minus ILy. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं.
और यहाँ पर जब हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं एल जेड एल एक्स की, तो ये वैल्यू है आई एच क्रॉस एल वाई और एल जेड एल वाई, ये हमने ये ऊपर भी पढ़ा है हमने कि एल वाई एल जेड, ये एल वाई एल जेड है, इसकी वैल्यू क्या है आई एच बार एल एक्स। तो यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो वो नेगेटिव का साइन मैंने यहाँ लगाया और ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी है, तो ये हमारे पास में आ गया है। नाउ एल जेड एल नेगेटिव, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इसकी ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं, तो ये आ गया हमारे पास में आई एच क्रॉस एल वाई देन माइनस आई और माइनस आई एच क्रॉस एल एक्स, सो दैट अब यहाँ पर फिर वही सेम सिचुएशन है, आई क्रॉस किया तो आई स्क्वायर आ गया, तो आई स्क्वायर यहाँ पे एक माइनस का साइन था, तो ये वैल्यू आपकी माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे जो माइनस था वो यहाँ पर आ गया, तो ये +1 एच क्रॉस एल एक्स आ गया हमारे पास में। और यहाँ पर हमने अब क्या किया, इसमें से एच क्रॉस को हमने माइनस एच क्रॉस को बेसिकली कॉमन ले लिया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई -ILY + LX। और फिर इसको जब हमने यहाँ पर माइनस एच बार और इस वैल्यू को जब हमने रीअरेंज किया तो ये आ गया हमारे पास, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं LX - ILY और दिस वैल्यू इज इक्वल टू L नेगेटिव, सो दैट LZ एंड L नेगेटिव इज इक्वल टू -HL नेगेटिव। तो कंबाइंड एक स्टेटमेंट देने के लिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं LZ का रिलेशनशिप, अगर आप L प्लस के साथ में देख रहे हो या L माइनस के साथ में देख रहे हो तो आपकी वैल्यू हमेशा आएगी H क्रॉस L पॉजिटिव, और साइन प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि आपका इंटरेक्शन पॉजिटिव के साथ है या नेगेटिव के साथ है। अगर पॉजिटिव के साथ है तो ये वैल्यू हो जाएगी +H क्रॉस L प्लस, और नेगेटिव के साथ है तो ये वैल्यू हो जाएगी -H क्रॉस L नेगेटिव। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट रिलेशनशिप पे चलते हैं, दैट इज कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ L प्लस एंड L माइनस। 4L प्लस एंड L माइनस ये हमने ले लिया है, ये आ गया हमारा L प्लस की वैल्यू हमने पुट कर दी है, यहाँ पे हमने L माइनस की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसके ऊपर हम कम्यूटेटर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी A + BC वी गॉट AC एंड देन BC। तो ये A + BC में हमने क्या एज्यूम किया है, ये हमारा A है और ये हमारा प्लस में B, यानी ये वाली जो टर्म है दैट इज A + B और ये वाली टर्म है इसे हमने माना है C। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास में आ गया AC और इधर ये आ गया हमारे पास में BC। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, AC, A क्या है हमारा LX और C क्या है LX - ILY। तो ये वैल्यू आ गई प्लस I। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सेकंड टर्म में I होता है तो हम I को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो इस I को हमने यहाँ पे बाहर ले लिया है, तो ये हमारे पास में B टर्म क्या आ गई है LY, देन C टर्म ये आ गई है। अब ये रिलेशनशिप जब आपने डिराइव कर लिया है तो उसके बाद में सेकेंड कम्यूटेटर प्रॉपर्टी आप लगाएंगे A, B + C, और जिससे हमारे पास में क्या आएगा AB + AC। तो जब हमने इसको अप्लाई किया तो अब हमारे पास में क्या है, ये है A, ये है B और ये है C। C की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी -ILY। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में। फर्स्ट टर्म क्या है AB, तो A क्या है आपका, ये है, B ये है, तो क्या आ गया LX। और सेकेंड टर्म में क्या आ गया AC के अंदर आपके पास में क्या है -I बाहर ले लिया हमने और LX/LY आ गया। इसी तरह से सेकेंड टर्म है, इसको भी हमने यही एज्यूम कर लिया, दिस इज A एंड B + C, A देन B + C, उसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आई थिंक आपको मालूम भी होगी कि जो दो सेम कम्यूटेटर होते हैं सेम एक्सिस के अलोंग जो हम ले रहे हैं ऑपरेटर, सॉरी कम्यूटेटर नहीं ऑपरेटर, तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होता है। इट में अगर LX है तो भी 0 है, LY है तो भी 0, LZ है तो भी 0, तो ये मैग्नीट्यूड 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ LY है, इसका मैग्नीट्यूड भी 0 हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा I, और ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं LX/LY के रिगार्डिंग, और इधर से ये आ जाएगा हमारे पास में